whatever has been achieved in this country, whatever has been constructed, whether it is IT, whether it is defense, all these structures sit on top of a foundation. That हिंदी में भी बोलूंगा, आप घबराइए मत. आप काम करिए, आप अपना देखिए ना. Everything has been built on a foundation that has been provided to us by the farmer. The farmer gave us the Green Revolution, and the Green Revolution happened because the farmer was given abundant credit and because the farmer was provided with the idea of MSP so that he could sell his crops. कल डेट डोंट मेक एनी किसान के जो आत्महत्या कर रहे हो आप उसके क्या कर रहे हैं आप? Anyway, I'm sorry to say, Speaker sir, Okay, all right. that on the matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our government, the Achhe Din government, that's their name, not my name, so I take their permission to use it. The Achhe Din government has failed the country. I'd like to point out a little bit about the MSP and agricultural credit. In our time, UPA government's time, agricultural credit grew by 700%. It went up to 8 lakh crore rupees, and 6.5 crore farmers benefited from this. Our average increase in credit was an average 20% every year. I'm sad to say that the current government has only given an increase of 5%. Shame. Comparing MSP, the current government has allowed it to stagnate. This is the heart of agriculture. Our record is available to everyone. I'd like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from 640 rupees to 1,400 rupees per quintal. In rice, we raised the MSP from 560 rupees to 1,310 rupees per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from 73 rupees to 220 rupees per quintal. And what has the current regime done? What has the current regime done over the last year? I'd like to say, wheat has been raised by 50 rupees. Sugarcane has been raised by 10 rupees. And cotton has been raised by 50 rupees. As if that was not enough, our farmer struggles. What is the result? What is the result of this? You talk about defending the country. You talk about strengthening the country. What is the result of this? The result of this is that during our time, agriculture grew at 4.1%. In the previous NDA government, the India Shining government, your record was 2.6% agricultural growth rate every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he will look after them. MSP is where it was. Agricultural credit has not been improved. And agricultural growth rate is 1%. Shame. How can you talk about strengthening this country if the foundation of this country is the farmer? Yes. How are you going to do that? Yes. Agricultural growth rate is stagnating. Farmer doesn't get credit. MSP is where it was. And the weather lets the farmer down. ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ. 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है. 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है. 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है. उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180. देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए. देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है. मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ. ये कंफ्यूजन हो रहा है ना. कोई 106 कह रहा है, कोई 80, 180, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है. मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें.
जाकर जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाके वहां उनसे बात कर लें। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर, बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। तो ये सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निगलेक्ट कर रही है। अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। मैं नेट न्यूट्रलिटी पे बोलना चाहता हूं। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। 1 million people have registered to fight for net neutrality. Youth have voted. They are asking on Twitter, on Facebook, on all other applications. They are fighting for net neutrality, and this government is trying to carve out the net and hand it over to some corporates. I would request the government to please stop the TRAI consultation and to look into changing the law or writing a law for net neutrality. यहाँ आने के मेरे दो लक्ष्य थे। पहला, जिन लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी उनकी मैं इज्जत करना चाहता था। 2013 में मैं यहाँ आया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था यहाँ क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर मैं केदारनाथ जाऊँगा, हेलीकॉप्टर से जाऊँगा, तो उनकी इज्जत नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि जिस प्रकार से वो आए थे उस प्रकार से मैं भी आऊँ। तो पहला मेरा लक्ष्य ये था। दूसरा लक्ष्य था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। पोर्टर्स हैं जिन्होंने आपके कैमरे उठाए, बैग्स ले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं। उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रहा है, घबराए हुए हैं। घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी और जो यहाँ आमतौर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैदल चल के जाऊँगा तो ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा, लोग आएंगे, लोगों को डर कम लगेगा। ये मेरे दो लक्ष्य थे। आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब ये ट्रेजेडी हुई तो जो यहाँ अफसर काम करते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके बारे में आपके सामने नहीं कहना चाहिए, मगर उनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा काफ़ी नेगेटिव कहा था और कहा था कि कुछ काम नहीं हो रहा है। शायद जिस प्रकार यहाँ पे काम हुआ है, और मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन यहाँ ट्रेजेडी हुई थी उस दिन के बाद अफसरों ने, सेना ने, पुलिस वालों ने, वर्कर्स ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने देखा होगा ये सड़क जो बनी है, जो इंतज़ाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हेलीपैड्स, ये जो हेलीपैड्स का आइडिया है, जो सीएम साहब का आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी प्रदेशों में भी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अलग अलग जगह हेलीपैड्स हों, तो अगर इवैक्यूएशन करना हो तो आसानी से हो सकता है। असर हुआ है। कल मैंने किसानों से बात की, उनका दुख समझने की कोशिश की। जैसे मैंने कल कहा था, पंजाब हिंदुस्तान को अनाज देता है, भोजन देता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं,
अच्छा है कि पैसा दिया है, मगर उनकी जो आवाज़ है, उनका जो दर्द है, उसको सुनने की और समझने की बात। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। पंजाब का जो किसान है शायद उससे ज़्यादा मेक इन इंडिया कोई करता नहीं है। इसने देश को खड़ा किया है। क्या जो गरीब मेक इन इंडिया करता है वो मेक इन इंडिया नहीं होता है, वो मेक इन कुछ और होता है। तो सेंट्रल की जो सरकार है, पंजाब की जो सरकार है, उन्हें किसान की मदद करनी चाहिए। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मजदूर जो खेतों पे काम करता है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए।